Welcome to Ashant Academy. My name is Aditya, and you are watching these videos from book P.S. Verma and Vicky Agrawal, which is written for class 9th biology, published by Ashant Publishing. और हम इन videos में book के page by page discussion करते हैं. We talk about what is written and what is the content of the book, so that your understanding about the book becomes easy and comprehensive. So let us start the same topic which we have left with in previous video. हम chapter 6 के बारे में बात कर रहे हैं, which is on improvement in food resources. So food and their resources are valuable to us. Humans and other organisms cannot survive without food, and we know that its improvement is necessary because the population is increasing exponentially. So to meet the demands, we have to think about improving the plant resources or food resources. So this chapter has several pages and so many parts. इसका कुछ part हम cover कर चुके हैं already पिछले videos में. We have looked at what is food improvement, क्या होता है, crops क्या होती हैं, crops को कैसे grow किया जाता है, कितनी categories होती हैं, और हमने साथ ही साथ पिछले वीडियो में प्लांट्स को जब न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जाते हैं तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको कैसे फुलफिल किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया था. वी ऑल्सो हैड मेड अ कंपैरिजन अबाउट द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ वी विल स्टार्ट विद अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. अब हम एक और जरूरी चीज के बारे में बात करेंगे जो क्रॉप्स के प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती है और जो रिक्वायर्ड होती है क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. So we know that plants require water essentially. They take carbon dioxide from atmosphere, they can take nutrients from the soil, but water is also essential even for us. For every living organisms, about 70% is water, so they need to absorb water from the environment. Although water is present in the soil, पानी सॉइल में रहता है, अंडरग्राउंड वाटर भी है, हमने नेचुरल रिसोर्सेज में उसके बारे में बात की थी. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एरिया में अगर क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं तो हमेशा जो सॉइल है उसमें सफिशिएंट अमाउंट वाटर की प्रेजेंट हो. सो इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स वी ऑल्सो नीड टू सप्लाई वाटर एक्सटर्नली. हमें कभी कभी पानी एक्सटर्नली प्लांट्स को सप्लाई करना पड़ता है, एंड दैट प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर एक्सटर्नली इनटू द सॉइल इज कॉल्ड एज इरिगेशन. ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो हमें फॉलो करनी होती है. देयर आर वैरायटी ऑफ मीन्स. एग्रीकल्चरल इरिगेशन के बहुत तरीके होते हैं, कई तरीके से इरिगेशन की जा सकती है. सम ऑफ देम आर कैनाल्स, वेल्स, रिजर्वायर्स, ट्यूबवेल्स. कई सारे तरीके हैं जिनसे क्रॉप्स तक पानी पहुंचाया जा सकता है, तो उन्हीं के बारे में आगे इस चैप्टर में बात की गई है. इफ यू गो टू द नेक्स्ट पेज यू विल फाइंड अ डिस्क्रिप्शन अबाउट इरिगेशन टाइप्स. They have also mentioned about the irregular rainfall in our country. So we do not receive rainfall equally in every part of the country. Like if you talk about desert areas, Rajasthan and Thar desert, it has very scanty rainfall. So hardly you will be able to grow any crops over there. वहाँ पे desert में crops को grow करना बहुत मुश्किल है just because you don't have water there. And on the other side, some of the areas in our country are having heavy rainfall. बहुत ज़्यादा rainfall भी होता है. Areas like Cherrapunji and Masinaram in Assam, they are some of the most rain-fed areas. So this imbalance between the rain and availability of water also leads to scarcity of water at some places and excess of water at some places. So both of them may be harmful. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी होगा तो अच्छा होगा प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो भी कभी कभी वाटर लॉगिंग कर सकता है. वहाँ पर एयर सप्लाई नहीं होगी. अगर पानी हमेशा भरा रहेगा किसी प्लांट के एरिया में तो नीचे रूट्स तक एयर नहीं पहुँचेगी. दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन abnormalities in the plants. So sufficient amount of the water, timely irrigation is important. Now, how do we achieve that irrigation? Before that, we will talk about few points related to advantages and disadvantages, which you can see here, and you can quickly read them up. आप इनको quickly पढ़ सकते हैं. irrigation से किस तरह से plants को benefit पहुंचता है, उनकी roots में जो dryness होती है वो खत्म हो जाती है और फिर उसको absorb कर लेती हैं. लेकिन दूसरी तरफ कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं इरिगेशन के. I mean, अगर आपने इरिगेशन
एक्सेस अमाउंट में किया है। जैसा कि मैं बता रहा था कि टाइमली इरिगेशन जरूरी है और सफिशिएंट अमाउंट में जरूरी है। इफ अमाउंट ऑफ वाटर एक्सीड्स सर्टेन लेवल देन दैट कैन कॉज समथिंग कॉल्ड वाटर लॉगिंग एंड दैट कैन आल्सो बी हार्मफुल टू द प्लांट्स। सो आफ्टर लुकिंग एट दीज एडवांटेजेस, इन एडवांटेजेस के बाद अगर हम आगे जाएं, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट फैक्टर्स कंट्रोलिंग इरिगेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट में इरिगेशन कब करना है, इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं, इन चीज़ों को डिसाइड करने में मदद करते हैं। सो इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स। एक तो क्रॉप प्लांट्स के नेचर पर डिपेंड करता है। हर एक क्रॉप को पानी की इक्वल अमाउंट की जरूरत नहीं होती है। लाइक पैडी रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ वाटर, whereas wheat doesn't require that much large amount of water. Some of the plants like mustard, they need very little amount of water, उनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। तो क्रॉप के टाइप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट की जानकारी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम इरिगेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉइल। लाइक if you take different type of soils, you can do that experiment yourself. अलग अलग तरह की सॉइल लेकर आप उसमें पानी डालें। एक रेतीली मिट्टी ले लें, सिर्फ रेत ले लें, और एक जो है नॉर्मल सिल्ट वाली मिट्टी ले लें, या फिर एक में दोनों का मिक्सचर ले लें, तो आप देखेंगे कि पानी तीनों तरह की जो सॉइल है उनमें एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो अलग अलग होगी। सो वेयर द प्लांट इज बीइंग ग्रोन, प्लांट किस तरह के एरिया में ग्रो किया जा रहा है, दैट ऑल्सो डिसाइड्स the pattern of irrigation, and the decision to do irrigation depends on that parameter as well. So this is what has been depicted here in more detail. यही चीज यहाँ पर ज्यादा डिटेल में बताई गई है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पैडी क्रॉप है, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वीट को कम की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो सैंडी सॉइल है उसको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इरिगेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है, इट गोज डीप इन दी एज अंडरग्राउंड वाटर, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इन सैंडी सॉइल इज मोर कंपेयर टू द सिल्ट एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल्स। नाउ कमिंग टू व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स आर पॉसिबल, किस तरह से इरिगेशन किया जा सकता है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है हमारे कंट्री में, किस तरह से इरिगेशन किया जाता है। सो वी कैन फाइंड मल्टीपल वेज, लाइक वन ऑफ द फॉरमोस्ट वे ऑफ इरिगेटिंग द क्रॉप्स इज टू यूज कैनाल सिस्टम्स। आपने कई बार देखा होगा कि जो मेजर रिवर्स हैं कंट्री की, उन पर डैम्स बनाए जाते हैं। सो डैम्स आर नॉट ओनली मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, डैम से केवल इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं बनती है बल्कि उसको ब्लॉक करके उससे पानी को साइड में कैनाल्स के फॉर्म में अलग अलग रीजन्स तक पहुंचाया जा सकता है। इवन यू कैन फाइंड आउट द नेम, आप इसको एक छोटे से होमवर्क एक्टिविटी की तरह कर सकते हैं। राजस्थान में कौन सी एक कैनाल है जो बनाई गई थी जिससे कि बहुत बड़ा एरिया राजस्थान का इरिगेट हो पाया, एंड व्हाट इज इट्स नेम, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट्स एंड फ्रॉम वेयर इट पासेस। ये सारी जानकारी आप एक होमवर्क की तरह, एक एक्टिविटी की तरह इकट्ठी कर सकते हैं, एंड यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग आंसर्स टू दैट। सो वी हैव वैरायटी ऑफ कैनाल्स इन आवर कंट्री, कई तरह की कैनाल्स होती हैं, एंड दोज कैनाल्स सर्व डिफरेंट रीजन्स विच आर नॉट फेड प्रॉपरली विद वाटर। यू कैन सी इन दिस वीडियो that how canals are used for irrigation. Then another thing is using tanks. कई बार वाटर टैंक्स जो है वो भी यूज किए जाते हैं। तो हालांकि टैंक्स जो है दे आर वेरी वेरी स्मॉल स्टोरेज एंड दे आर जनरली यूज्ड वेयर द अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी वेरी स्कैंटी एंड वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर और मेक बिग लेक्स और पॉन्ड्स। तो टैंक्स जो है छोटे छोटे रिजर्वायर्स होते हैं जो रन ऑफ वाटर को, यानी कि बारिश से बहता हुआ जो पानी है उसको इकट्ठा करने के काम आते हैं। स्मॉल डैम्स या चेक डैम्स भी उन्हें आप बोल सकते हैं, तो उनको भी कई बार इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एन ओल्ड प्रैक्टिस और क्लासिकल प्रैक्टिस इज टू डिग वेल्स बना लिए जाते हैं। स्पेशली इफ यू गो टू द राजस्थान एरियाज यू विल फाइंड दैट देयर आर वेल्स, कई तरह के वेल्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्पेशली द लार्ज वेल्स विच आर माउंटेड विद स्टोन्स एंड पीपल कैन गो डाउन इनटू दीज वेल्स। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू टेक आउट दैट वाटर फ्रॉम द वेल। तो एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है वेल से पानी निकालने की। पहले टाइम में, इट्स नॉट नाउ, आई थिंक 50 years ago that practice was followed, a technique called रहट बोलते थे उसको। तो उसमें क्या होता था कि चारों तरफ उसमें बॉक्सेस, टिन के बॉक्सेस लगे रहते थे, एंड विद द हेल्प ऑफ बुलक्स और मे बी ऑक्सेस, उनकी मदद से उस रहट को चलाया जाता था और नीचे से पानी निकल के आता था। यू माइट सी
हियर इन दिस पिक्चर और मे बी इन द वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से रहट से एक वेल से पानी निकालकर इरिगेशन किया जाता है. Now things have changed. Now we have electricity reached almost every part of the country, and we can make deep bore wells, and we can implant a motor, electric motor there, and we can take out water from that. So that is now called as tube well. उसे हम tube well कहते हैं. So tube well is a very very common practice of irrigating the fields nowadays. आजकल बहुत ही common practice है fields को irrigate करने की. देर आर ऑल्सो रिवर लिफ्ट सिस्टम्स. कुछ जगह रिवर के पानी को जो है छोटे डैम बनाकर उनके लेवल को बढ़ाकर भी रिवर लिफ्ट सिस्टम यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए. दैट इज सम ऑफ द लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड टेक्नोलॉजी और लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड सिस्टम फॉर इरिगेशन. देन वी हैव सम अगेन लेस फ्रिक्वेंट सिस्टम्स कॉल्ड रिवर वैली सिस्टम. So that is used especially in some parts of the country like Kerala and Karnataka. अगर आप कभी उस तरफ घूमने जाएंगे या वेस्टर्न घाट्स में जाएंगे, so you will find that the water is discharged into steep and narrow riverine valleys. मतलब रिवर का जो पानी है नैरो वैलीज में, यानी कि आप कह सकते हैं कि नेचुरल टेरेन को वो एक कैनाल की तरह यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिवर वैली सिस्टम. सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम which is used. Then in those areas where amount of water is very less and rainfall is little, especially in Rajasthan and some part of the Maharashtra and Madhya Pradesh where rainfall is little less, people use this kind of system called drip and sprinkler system. तो आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से स्प्रिंकलर्स की मदद से एक पाइप में पानी को स्प्रे किया जाता है प्लांट्स के ऊपर. इससे क्या होता है, इससे पानी की जो वेस्टेज है वो बच जाती है. सो जहाँ जिन एरियाज़ में पानी की कमी होती है वहाँ पर डायरेक्टली ट्यूबवेल या कैनाल्स नहीं पहुँच सकती हैं, वहाँ पर इस तरह के स्प्रिंकलर सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथड एंड यूजफुल मैथड ऑफ इरिगेशन. So apart from using these irrigation methods, we can also do rainwater harvesting, as we have discussed in previous chapter. पिछले चैप्टर में हमने बात की थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, और वहाँ देखा था कि किस तरह से अगर वाटर टेबल को इंक्रीज करना है, वाटर का जो लेवल है ज़मीन के अंदर उसको बढ़ाना है, तो हम बारिश के सीज़न में छोटे छोटे चेक डैम्स बनाकर या फिर अपने घरों में बोरवेल्स बनाकर पानी को इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर तक भेज सकते हैं, एंड दैट कैन ऑगमेंट the water levels in a particular area, and later we can make use of tube wells or normal wells for the irrigation purpose. So this was one part. I mean, this was about how do we irrigate crops. It is also a part of crop improvement and increasing food productivity. Then comes another point that is called cropping patterns. इसके बारे में हमने चैप्टर के शुरू में बात की थी. अगर पिछला वीडियो आपको ध्यान है तो हमने स्टार्टिंग में पिछले वीडियो के पार्ट 1 में हमने बात की थी कि क्रॉप्स को एक पैटर्न में ग्रो करने पर, एक स्पेसिफिक स्टाइल में ग्रो करने पर, जैसे कि उनको ऑल्टरनेट ग्रो करें या क्रॉप्स को मिक्स करके ग्रो करें, तब भी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है. सो दैट एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज क्रॉपिंग पैटर्न, एंड इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द सब्सिक्वेंट पेजेस. सो यू हैव वन टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड क्रॉपिंग. एक टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न है जिसे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं. सो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा टाइप के प्लांट, जैसे वेजिटेबल भी ग्रो कर रहे हैं, आप साथ में सीरियल भी ग्रो कर रहे हैं, या 2 तरह की वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग. सो दीज मिक्स्ड क्रॉपिंग आर वेरी वेरी यूजफुल टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द लैंड एंड न्यूट्रिशनल रिसोर्सेज. लैंड और न्यूट्रिशनल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो सकता है मिक्स क्रॉपिंग की मदद से. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है मिक्स क्रॉपिंग का ये होता है कि फार्मर्स के लिए एक तरह का इंश्योरेंस है ये. अगर एक क्रॉप खराब हो रही है किसी वजह से, तो दूसरी क्रॉप एटलीस्ट बच सकती है, क्योंकि वो 2 क्रॉप एक साथ ग्रो कर रहे हैं. सो दैट इज वन एडवांटेज. अदर देन दैट देयर कैन ऑल्सो बी एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी. सो साइंटिफिक रीजन भी है इसका एक, एंड सेवरल थिंग्स हैव बीन ट्राइड. फार्मर्स ने बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारे क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करा के उनको देखा कि किसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है. सो सम ऑफ द एग्जांपल्स हैव बीन गिवन हियर. मेज को उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम के साथ, उड़द दाल के साथ ग्रो किया जा सकता है. सोरगम को पिजन टी के साथ, वीट को मस्टर्ड के साथ, कॉटन को मूंग बीन के साथ, या फिर वीट को चिकपी यानी कि चने के साथ. इस तरह की कुछ मिक्स क्रॉप्स ग्रो की जा सकती हैं, एंड दे कैन एनहांस द प्रोडक्टिविटी.
सो दैट इज वन वे ऑफ इम्प्रूविंग द फूड प्रोडक्टिविटी। कैसे सिलेक्ट करते हैं मिक्स क्रॉप के लिए, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। कई सारी क्रॉप्स को लगातार ग्रो करके देखा जाता है, उनकी हाइट सेम नहीं होनी चाहिए, उनका जो एरिया है, न्यूट्रिशनल एरिया है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए उसमें। सो दिस इज हाउ वी मेक अ सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर मिक्स क्रॉपिंग। एंड ऑफ कोर्स यू नाउ नो द एडवांटेज, रिस्क नहीं है फार्मर्स के लिए, फर्टिलिटी मेंटेन हो सकती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं क्रॉप्स। हो सकता है कि एक के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दूसरी क्रॉप के काम आ रहे हैं, या एक के अंदर होने वाले जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं वो दूसरे प्लांट के काम आ रहे हैं। तो इस तरह से एक दूसरी क्रॉप को वो हेल्प भी कर सकती हैं। सो बिसाइड्स मिक्स क्रॉपिंग वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ इंप्रूविंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। Now, it is important to understand the difference between intercropping and mixed cropping. हालांकि दोनों ही situations में हम एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं एक गिवन एरिया में, लेकिन इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अलग हैं और उनके तरीके भी अलग हैं। व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? इसमें हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स एक साथ ग्रो तो करते हैं, लेकिन उनको सेम फील्ड में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बट वी फॉलो अ पैटर्न। जैसे कि आप इस पिक्चर में यहाँ देख पा रहे हैं कि एक क्रॉप जो है एक पर्टिकुलर लाइन में ग्रो की गई है, फिर कुछ स्पेस छोड़कर एक दूसरी क्रॉप ग्रो की गई है, फिर दोबारा से यही क्रॉप ग्रो की गई है। सो वी यूज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैटर्न, समटाइम्स इन अ वेरी वेरी डिफाइंड रेशियो, लाइक 1:1 का रेशियो हो सकता है, यानी कि जितना दो क्रॉप्स हैं तो वो 50-50% एरिया कवर कर रही हैं, or it can be 1:2 ratio or sometimes 1:3 ratio. And the primary objective of intercropping is not to provide an assurance to the farmer, but it is to increase the productivity per unit land. जो लैंड एरिया है, मान लो आप कभी खेतों में जाते हैं, फील्ड्स में जाते हैं, तो वहाँ पर बीच का एरिया होता है जहाँ पर फील्ड्स को डिवाइड किया जाता है, जहाँ सॉइल ऊपर डाल के रखी जाती है। तो उसमें कुछ कई बार फार्मर्स क्या होते हैं, दे जस्ट ग्रो रेडिश और सम वेजिटेबल्स इन द फील्ड्स ऑफ आई मीन व्हीट। सो एक क्रॉप के साथ बीच में दूसरी क्रॉप लगा देने से जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, जो एरिया का यूटिलाइजेशन है, वो बढ़ जाता है। तो यही सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इफ यू गो थ्रू दिस टेबल। अगर आप इस टेबल में जाएंगे तो आपको और बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे to learn about mixed cropping and intercropping. इनके बीच में contrast आपको clear हो जाएगा। First is very very important. First point, इसका जो mixed cropping का जो primary objective है, it is to provide assurance to the farmers. उनको एक तरह का insurance है कि एक crop खराब हो जाए तो दूसरी तो grow करेगी, and they are randomly distributed. पूरे field में दोनों crops randomly distributed होती हैं। लेकिन intercropping का aim जो है वो पर यूनिट एरिया प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, और ऐसा नहीं है कि प्लांट्स कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। देयर इज अ डिफाइंड पैटर्न कि कहाँ पर एक क्रॉप के प्लांट होंगे और कहाँ दूसरे क्रॉप के प्लांट होंगे, दैट इज इंटरक्रॉपिंग। Then besides this intercropping and mixed cropping, we have yet another strategy called crop rotation. आई होप इसके बारे में हमने बात की थी। अगर आपने शुरुआत वाला वीडियो देखा है इस चैप्टर को, जब हमने शुरू किया था, तो पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी कि किस तरह से सीजनल वेरिएशंस होने पर हम अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। हम थ्रू आउट द ईयर एक ही तरह की क्रॉप ग्रो नहीं करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। वी हैव खरीफ, रबी एंड जायद सीजन्स, and based on those seasons we have different kind of crops grown in a year, so that you can see here. Besides that, we can also perform rotations of the crops. हम rotations भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखें तो एक साल जो क्रॉप ग्रो की आपने, वो अगले साल ग्रो नहीं करेंगे, अगले साल कोई दूसरी क्रॉप्स चूज कर लेंगे। So you can see here in 1 year rotation people do maize and mustard, rice or wheat. That means in summers they have rice, and then winters they have wheat, then again summers they have rice, then winters they have wheat. So this is 1 year rotation. Some more complicated patterns are 2 year or 3 year rotations. इसमें क्या होता है कि आप पहले साल के एक सीजन में मेज ग्रो कर रहे हैं, फिर दूसरे सीजन में मस्टर्ड ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद जब अगला साल आता है तो उसमें फिर आप दोबारा मेज ग्रो नहीं करते हैं बल्कि शुगर केन ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद आप मेथी ग्रो कर लेते हैं उसमें। तो 2 साल के बाद आपकी फिर दोबारा वही क्रॉप आती है, दैट इज कॉल्ड 2 year रोटेशन। सिमिलरली यू कैन हैव मच लॉन्गर रोटेशन, एक और लंबा रोटेशन हो सकता है। यू ग्रो राइस, देन इन विंटर्स यू गो फॉर व्हीट, and then again when summer comes you grow some kind of pulses,
then you grow mustard, then you grow sugarcane, and then you can have some green manures grown in the field to revamp its fertility. So that is quite impressive, and that is quite useful for improving the fertility of soil. And also it helps farmers sometimes, because you never know that the prices of different kind of crops may change or they keep on fluctuating. So when you rotate the crops, when you have different kind of crops grown in different seasons, you have different profitability. So from the perspective of source of income or from the productivity of farmers, the rotation is very very useful. Rotation जो है काफी useful होता है. So this is how we can do rotation in different ways, which have been explained here, and all these advantages have also been mentioned here. यहाँ पर advantages भी बताए गए हैं. एक स्पेशल टाइप का रोटेशन जो 4 साल के पीरियड में होता है, उसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉरफ्लॉक रोटेशन. तो ये एक बॉक्स में एक छोटी सी जानकारी दी गई है. दिस इज द बेस्ट क्रॉप रोटेशन टेक्निक. इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग द 4 क्रॉप्स इन अ गिवन फील्ड ओवर द पीरियड ऑफ 4 years. दीज क्रॉप्स आर व्हीट, एक सीरियल ग्रो करें, फिर क्लोवर और बीन यानी कि कोई लेग्यूम ग्रो करें, ताकि उसमें सॉइल में नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. देन यू फॉलो इट विद अनदर सीरियल, बार्ले और एनी अदर सीरियल, एंड देन यू ग्रो सम काइंड ऑफ रूट क्रॉप जिसमें रूट्स यूजफुल होती हैं, मे बी टर्निप और रेडिश और एनी अदर क्रॉप. सो दैट इज कॉल्ड एज नॉरफ्लॉक rotation, a 4-year rotation. It might be important sometimes for your exam. आपके एग्जाम के लिए भी important हो सकता है ये पॉइंट. तो यही सारे यहाँ पर एडवांटेजेस बताए गए हैं क्रॉप रोटेशन के. फील्ड की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप अलग अलग तरह की क्रॉप्स यूज करते हैं तो सॉइल के न्यूट्रिएंट, एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, बट उसमें न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश होते रहते हैं और सॉइल फर्टाइल बनी रहती है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन. So with this I will say we have completed first part of this video. यहाँ पर हम अपने इस वीडियो का पहला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं. इस पहले पार्ट में हमने क्रॉप इम्प्रूवमेंट की स्ट्रेटजीज के बारे में बात की थी. वी स्टार्टेड विद व्हाट इज इरिगेशन. इरिगेशन क्या होता है, कैसे हम इरिगेशन करके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से मीन्स हैं इरिगेशन के. और दूसरा जो हमने देखा था वो क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात की थी, विच इंक्लूडेड मिक्स्ड क्रॉपिंग, विच इंक्लूडेड इंटर क्रॉपिंग, एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द क्रॉप रोटेशन. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज टर्म्स वेरी वेल. आपको ये सारे टर्म समझ आ गए हैं. यू कैन कंटिन्यू रीडिंग दिस बुक. आप इस बुक को कंटिन्यू कर सकते हैं. यू कैन रिपीट योर रीडिंग एंड देन यू कैन एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्रॉप इम्प्रूवमेंट मच बेटर. आई विल बी बैक in another video that will be part 2 of this discussion, जहां पर हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में आगे की बातें करेंगे. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.